doubt? Doubt in what? Like school ka the assignment which they gave now one question I didn't know how to solve, so I just want to clarify. In error? अभी जो assignment था ना, like something related to like time period something, so I wasn't able to solve. किसमें, dimension में कि error में? किसमें? Dimensions. Okay, we'll look at it. What's up, Rishit Ganguly? All good, just a bit tired. Why are you tired, man? I don't know. The school itself is like exhausting. Same thing School is over and exhausting. over. Yeah. Right. तो थोड़ा ऐसे तुम लोग बीच में डोज लेते रहा करो, कुछ खाने के लिए रख लिया करो साथ में. Keep munching it, keep drinking, you know, some hot stuff. So at least munch करते रहोगे तो इतना वो नहीं लगेगा. But अगर तुम सिर्फ passively सुनते रहोगे ना, तो keep noting, note करते रहोगे तो भी बोर नहीं लगेगा तुम्हें. It will not be exhausting also mentally. Don't try to crunch everything in the brain. Use other body parts. Use eyes, use hands. और हाँ, headphones से भी बहुत tired हो जाता है. Stop using headphones. If you, मैं भी पहले इसका headphones में रखता था and then head used to ache so much. और तुम्हारी बहन कैसी है? वो भी ठीक है. उसको नहीं हो रहा होगा. She must not be exhausted. नहीं, उसका भी ट्यूशंस है. What's up, Sanat? Nothing much, sir. Just the usual. I saw your picture partying, all you people. On Insta? तुम और कितना grow होगे भाई? You're so tall. It's amazing. This better be it. नहीं, but अच्छा और grow होते हो यार. It'll be so awesome. कितना सही है. अभी you're 6'1" you said, right? 6'4". 4. Crazy height, man. You can be a professional basketball player. I did start playing, but then like lockdown and everything happened. Yeah. You can be a model also. Nah. Why? Height here. Too boring. Ah, that's true, man. Too boring. It's like, how do you grow? Where do you grow? There's no growth in that job. Yeah, exactly. Crazy. So What's up, what Kaveri? happened to Rishabh sir? Like today it was supposed to be वो match. Right? उसका he's off somewhere, so that's why I'm taking him. He was busy somewhere. What's up, Kaveri? All good, sir. Nothing. तुम्हारी बहन का नाम नर्मदा है क्या? I don't have a sibling. Okay. सही है. कभी-कभी ऐसे जोक्स आ जाते हैं. Impromptu. सर, आप कौन से बिट्स पिलानी में थे? पिलानी. द राजस्थान में. They send this T-shirt अभी तो अब पहनता हूँ. अरे ये मेरी आदत है. मैं एक कपड़ा ना बहुत दिन तक, बहुत जब तक वो फट नहीं जाता ना, तब तक. मैं कॉलेज में भी ऐसे ही पहनता था. जो सामने 2 टी-शर्ट रखेंगे, सिर्फ वही धुलते जाते हैं. I don't know, is it good or bad habit? It just happens. मुझे तो अच्छा लगता है because then there's no choice, right? जो सामने दिखा वो डालो. तो हमने पिछली क्लास में किया था डायमेंशन और एरर. उससे पहले वाली क्लास में हमने थोड़ा बहुत मोशन पढ़ा था, राइट? ओके, क्या डाउट था भाई तुमको? पूछो. Oh, by the way, Flipper हो गया रेडी and it's crazy addictive. The app. Is it can we download it from the Play Store? हाँ, अभी तो I have put 30 people. There are 30 people working on uploading the content because the content is tagged with various things, right? What level, what dimension. Dimension in the sense is memory-based content or understand. There must be a lot of stuff too because it's gonna be for like a lot of classes. 9 to 12 के लिए कर रहे हैं हम. 9, 10th, 11th, 12th CBSE plus JEE plus NEET.
इन सबका कंटेंट अपलोड होगा धीरे धीरे, अब 1 महीने में हो जाना चाहिए था। Is it only like solving based, or I guess you said they also like explain and stuff, right? दिखाऊं दिखाऊं ठीक है, दिखाइए। दिखाता हूँ, वेट। What I'll do is, yeah, I'll get on this also, and then I'll screen share it, and then you guys give me feedback. I'll stop recording. Should I dictate the question or like how am I supposed नहीं to? पता, Or your just say it out. yeah, like basically it's like a 3-marker question. The period of vibration of a tuning fork depends on the length L of its prongs, density एक D. मिनट, एक मिनट, एक मिनट। So the period of vibration depends on length, Length, density, and Young's modulus Y of its material. hmm, Deduce an expression for the period of vibration on the basis of dimensions. तो उसके लिए तुमको यंग्स मॉडुलस पढ़ा होना चाहिए ना। Appa sir, what is Young's modulus? वही तो, यंग्स मॉडल पढ़ा हो ना, वो बाद में आएगा, तुम्हारे ग्रेड में ही आएगा, बट विल कम लेटर। सो व्हाट्स द पॉइंट? यंग्स मॉडुलस So she gave us formulas and dimension for it. What is the dimension for Young's modulus? M1 L minus 1 T minus 2. Yeah. What were you saying? She gave us like the dimensions for it because it tends to come in sums a lot. M1 L minus 1 T minus 2. L1 L minus 1 T minus 2 मतलब for what? This is a formula for what? No. Young's modulus, the dimensional formula, m to the power 1. Oh, this is dimensional formula. Yes, Okay, m to the power. m to the power 1. 1, L to the power minus 1, and T to the power minus 2. Okay. So Young's modulus होता है stress upon strain. Okay. Stress क्या होता है? Force upon area. ठीक है, तो बस, और strain जो होता है that is the change in length upon length. तो strain का कोई dimension नहीं होता। तो stress का क्या हुआ? Force upon area. तो force का क्या हुआ? kg meter per second square upon area. ठीक है, तो ये हुआ kg upon meter second square. It is mass, और ये क्या हुआ? मीटर, तो L to the power minus 1 और ये T to the power minus 2. ठीक है, that's it. अब तुमको Okay. आसान हो जाएगा याद करना कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। Oh, no, because in our class we didn't get the formula for that, so we didn't know how ठीक to है, do it. अभी पता चल गया ना। तो बेसिकली यंग्स मॉडुलस कब काम आता है कि कोई तार तंगा हुआ है तो उसके ऊपर तुम फोर्स लगा रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर एरिया उस फोर्स में फोर्स लगा रहे हो, तो कितना उसका लेंथ बढ़ेगा, तो दैट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, और थोड़ा बढ़ने के बाद वो टूट जाएगा। सो दैट्स वेयर यू लर्न अबाउट यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हो गया, खत्म। चले अब आगे। So where are all people on video? So let's do some graph now. तो हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले उसमें, हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे बताओ। ऋषित गांगुली, where are you? Yeah, sir. आ जाओ ना। Yeah, so we did 3 formulas. So V is equal to U plus AT. नहीं, वो सब तो बेसिक फॉर्मूला है। चलो ठीक है, लिख देता हूँ। B equals to U plus AT और V square is equal to U square फॉर्मूला plus, UT है ना। okay, हाँ UT बोलो, plus UT। half AT square. ओके, थर्ड फॉर्मूला
v square is equal to u square plus 2as. Okay, और डिफरेंशियल के टर्म्स में क्या क्या था? dv by dt. I ये mean, a is equals to dv by dt. oh, Okay. I see. Okay. और Yeah. Then s is equal to no. Oh wait. Yeah. No wait. Is it? तो v is equals to क्या है? v is equal to dx by dt. Okay, ठीक है, फिर और Then will a b हो गया. Then what is left? a का एक और था. d by, okay, can I say? हाँ बोलो. D by dt of dx by dt. नहीं नहीं, a का एक और था ना फॉर्मूला, नहीं पता? a equals to v dv by dx. हाँ So, so that dx equals to vdv for the third one. हाँ, a dx equals to v dv. ये याद होना चाहिए क्योंकि आएगा ये बहुत बारी हमको यूज करने. ठीक है, ये हो गया. तो बस इतना ही फॉर्मूला था. v का फॉर्मूला हो गया, a का फॉर्मूला हो गया, बस खत्म है ना. ओके, और कुछ? तो सर एक और चीज बोलना था. आज हमारे क्लास में यही पढ़ा रहे थे, तो देन एक और ऐसा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा कुछ तो दिया हम लोग को. लाइक बेसिकली इट्स लाइक डिस्टेंस कवर्ड इन n seconds for like they give some kind of a derivation to us. ओके, so that's called s nth. nth सेकंड में s nth कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? n सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया माइनस n माइनस 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. इसका मतलब क्या हुआ कि n सेकंड में यहां तक ट्रैवल किया, लेकिन n माइनस 1 सेकंड में यहां तक किया था, तो nth सेकंड में सिर्फ इतना किया होगा ना. ठीक है, तो बस बाकी लगा दो इधर फॉर्मूला. घटिया फॉर्मूला है ये सब. ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं. दीज आर द थ्री फॉर्मूला. अभी फॉर एग्जांपल पूछेगा कि s थर्ड सेकंड में कितना हुआ, तो क्या होगा? 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और माइनस 2 सेकंड में कितना हुआ. और यही तो हमने पिछली बार किया भी था ना, बहुत बारी प्रैक्टिस भी की थी. इफ यू रिमेंबर, इस पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. यू रिमेंबर इन द डीपीसी देयर वर मेनी क्वेश्चंस लाइक दैट. Like they gave a whole derivation, but in the end it was the same thing which we had to subtract in the end. हाँ एग्जैक्टली. तो ये डेरिवेशन तो यही है ना, sn माइनस 1 ही होएगा. sn क्या होएगा? हाफ. तो sn इज इक्वल्स टू ut, वो तो सेम ही है. ut sn के लिए हो या sn माइनस 1 के लिए हो? नहीं, सेम कैसे हुआ? ut un हो जाएगा. sn इज un माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस sn माइनस 1 क्या हो जाएगा? un माइनस 1 ये प्लस हाफ an स्क्वायर 1 प्लस हाफ an माइनस 1 होल स्क्वायर. ऐसे ही रहेगा, है ना. बस को करोगे सबट्रैक्ट, तो जो आएगा वो आएगा. ठीक है, हो गया खत्म. चलो अब ग्राफ देख लेते हैं फटाफट. सो दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ. मेजरली एटी ग्राफ भी हो सकता है वैसे तो, और भी कोई भी ग्राफ हो सकता है, बट लेट्स स्टार्ट विद एक्सटी ग्राफ. ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो स्लोप हमको किससे मिलेगा? कौन से पैरामीटर से मिलेगा स्लोप? Angle. हाँ Angle. हाँ, बट सो जैसे हमको ये स्लोप निकालना हो या ये स्लोप निकालना हो या ये स्लोप निकालना हो, तो उसके लिए हम करेंगे dy by dx, है ना. ओके, सो द स्लोप इज ऑलवेज dy by dx at a particular point, at a particular x or at a particular y. ठीक है, get it? So the slope is dy by dx. Whereas एरिया निकालना हो, अगर हमको यहाँ का एरिया निकालना हो, इतना एरिया, राइट. सो व्हाट वील डू इज, इतना y पकड़ेंगे, ये y है, और ये छोटा सा पार्ट क्या है? dx है. तो ये जो एरिया होगा दैट विल बी y dx, है ना. तो ये एरिया छोटा सा, इसको हम कहेंगे dA. dA इक्वल्स टू y dx, राइट. फिर पूरा एरिया निकालना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. गेट इट?
सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज ग्राफ. अभी y की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, x की जगह टाइम लिख सकते हैं, राइट? सो फटाफट देखते हैं. चलो, तो अगर हमने st ग्राफ लिया है, राइट, तो उसका स्लोप हमको क्या दिखाएगा? इस ग्राफ का स्लोप हमको क्या दिखाएगा? हाँ, Velocity. Velocity. दिखाएगा, राइट? तो स्लोप हियर विल गिव अस वेलोसिटी. तो अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है इसका, तो इसमें स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा. कम हो रहा है, राइट? तो पहले ऐसा स्लोप था, अब कम होते जा रहा है, राइट? इसका मतलब वेलोसिटी इसकी कम होते जा रही है. इसका मतलब ये डिसेलरेशन, ठीक है ना? सिमिलरली अगर ऐसा गया तो इसका स्लोप बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज होते जा रही है, राइट? अगर ऐसा ग्राफ है, इसका मतलब इसका स्लोप 0 है, तो वेलोसिटी 0 है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, है ना? अगर ऐसा ग्राफ है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है? इसका एरिया हमको क्या देगा? इसका एरिया कुछ नहीं देगा, बिकॉज s इंटू टी कुछ नहीं होता. ओके. सिमिलरली अगर हम vt ग्राफ लेते हैं, तो vt ग्राफ में स्लोप क्या देगा हमको? Acceleration. करेक्ट, एक्सेलरेशन देगा. तो इसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है? और इसका एरिया क्या देगा हमको? करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है? तो कई जगह ऐसे हो सकता है कि ये vt ग्राफ ऐसा बनाओ और ऐसा है बना हुआ. ये तो खैर बकवास है, क्योंकि टाइम, अगर ये टाइम है तो टाइम 0 से कम नहीं हो सकता. तो दिस पार्ट विल नॉट बी देयर. अभी ये एरिया तुमको मिला, राइट? So this will give you displacement from time this to this, and then this will give you displacement from time this to this, right? But ये displacement negative है, ये negative displacement, ये positive displacement, ठीक है? तो total displacement क्या होगा? Positive minus ये. But अगर distance निकालना होगा तो this plus this करोगे, got it? ठीक है? Clear? Sir, I got disconnected after the acceleration part. Could you please repeat? तो ये एक्सेलरेशन हो गया. उसके बाद हमने पूछा कि यहाँ पे इसका एरिया क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट देगा. फिर मैंने ये बताया कि कई जगह ऐसे हो सकता है कि वेलोसिटी यहाँ से चालू हुई, फिर 0 हो गई और नेगेटिव में पहुंच गई वेलोसिटी. तो इस केस में ये एरिया पॉजिटिव एरिया है, ये एरिया नेगेटिव एरिया है, राइट? तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट दिस माइनस दिस होएगा, लेकिन डिस्टेंस निकालना होगा तो दिस प्लस दिस होएगा. कूल? ओके, चलो क्वेश्चंस करते. Sir, a question है. हाँ, So like we have differentiation formulas for V and A. So is there any formula for S also? हाँ, तो v equals to ds by dt ना, तो ds is equals to v dt. तो s you can find by integrating. Ah, okay, yeah. So when do we actually use integration? So I have heard when you have to find like S, but if I had to just give you a question, how would you know when to use that? I'll show you. अभी हम कुछ questions करेंगे तो उससे clear हो जाएगा, ठीक है? चलो. तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर हुआ. ये हमने किया था पिछली क्लास में, किया था कि नहीं किया था? हाँ ना, Last class तो नहीं था. हाँ, मतलब किसी क्लास में किया था क्या कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर फाइनल पोजीशन वेक्टर जो भी है, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ से यहाँ गई, उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था r1, क्योंकि ये जहां भी था वो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r1 था. फिर आ गया r2, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा r2 माइनस r1 वेक्टर. ठीक है, मेक सेंस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये अपन ने उसमें किया था आई थिंक,
जो हमने वेक्टर पढ़ा था, बट एनीवे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल, दोनों को डिवाइड करना, ठीक है। इंस्टेंटेनियस ब्ला 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 खत्म, ये सब तो अभी पढ़ाया मैंने ना। चलो ये वाला सवाल करते हैं, चलो। Is it moving along the semicircle or on the like diameter? Say it again. Is it moving along the semicircle or like Moving in a across it? semicircle लिखा है ना, it's moving in a semicircle. Okay, two people have answered differently. हो गया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी दिया। इस किसने दिया भाई? सनत, स्मेरा, ऋषित, आदित्य, ऋतु, शंकर, कावेरी का क्या हुआ? Where are you confused, Kaveri? Tell me. In 1 second, a particle goes from point A to point B, moving in a semicircle of radius 1 meter. The magnitude of average velocity is क्या तकलीफ? Average velocity क्या होती है, Kaveri? Oh, I know it's total displacement by time. Like when moving along a like moving in a semicircle, do we mean like the curve? Displacement क्या होता है? What is displacement? Shortest distance. तो ये हुआ ना displacement. Body यहाँ से यहाँ गई, लेकिन इसका displacement तो इतना ही हुआ ना? So it's 2. Yes. ये तो 9th level का question है भाई। 2 हुआ ना फिर? हाँ people, ऋतु शंकर √5 कैसे हुआ? सनत कुमार 3.1। I did it wrong.
I don't know why I used the graph thing and I removed this. ठीक है, फाइन, ये वाला सवाल करो. चलो, everybody do this question. अर्नब शाह ने सेकंड और फोर्थ का आंसर दिया, क्योंकि वो पहले का क्या हो गया भाई. ऋतु शंकर ने सारे आंसर दिए, सनत कुमार ने भी दिए, कावेरी ने भी दिया. अब ये फ्लिपर पे डाल दे, आसान हो जाता, फ्लिपर तुरंत तुरंत बता दे. डन. किस किस से नहीं बना, सबने दिया वैसे तो. ऋषित गांगुली, क्या तुम्हारा कहाँ है? ऋषित, So distance traveled और average speed में थोड़ा डाउट है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे करूँ. पहले वीडियो पे आओ यार सब लोग, धीरे धीरे तुम लोग गायब हो जाते. कम ऑन वीडियो पीपल, जाओ मत वीडियो पे, ठीक है, यहीं पे रहो. Particle moves along a semicircular path of radius r in time t with constant speed. और the particle calculate distance travel. Distance क्या होगा जो असली में travel किया यहाँ से.
राइट? तो कितना होगा, कितना होगा भाई रिशित? ए से बी का डिस्टेंस कितना है? वही मुझे बस थोड़ा अभी ये अभी तो याद नहीं पता आ है, रहा यहाँ कैसे से करना यहाँ तक, यहाँ से अगर ये पूरा ऐसे ट्रैवल करता कितना होता पूरा? था। 2 2 पाई pi r 2πr होता हाँ ना, अभी आधा ही किया तो कितना होगा? 2 पाई आर बस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का? 2 आर मतलब एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज तो होगा पाई आर बाई टी। करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 2 आर बाई टी। खत्म, खत्म हो गया ना फिर, सही है फिर। कोई ओके, डिस्टेंस ही नहीं आ रहा था। तो ये ठीक है, ओके चलो ये वाला करो, ये भी हमने बहुत किया था। मेरा करेक्ट, बाकी का क्या? आदित्य विवेक करेक्ट, आई थिंक स्मेरा का थोड़ा गलत है। सनत कुमार करेक्ट। अर्नव शाह भाई, ऐसे कैसे? कावेरी रॉन्ग। अर्नव शाह कम इन। यस सर। ऐसे कहते v1 प्लस v2 प्लस 2 लिखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगा बोलो? ये कॉन्सेप्ट में जस्ट
कॉन्सेप्ट लगाना है ना. देखो ये किया तो था हमने, नहीं तुम्हारे साथ किया था, किसी और के साथ किया था, फॉरगॉट. A body travels first half of the total distance with velocity v1. देखो तुम लोग के साथ ही तो किया था ना. सर आई थिंक किया है, मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास में आई थिंक सो. किया था यार मल्टीपल टाइम्स की, उसको 3 भाग में. देखो बॉडी ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल किया उसने, तो ये डिस्टेंस x होगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी x होगा ना अर्नब शाह. यस सर. वेलोसिटी v1, तो ये v1 से ट्रैवल किया, ये वाला v2 से ट्रैवल किया, तो इसके लिए t1 टाइम लगा होगा, इसके लिए t2 टाइम लगा होगा, राइट. सो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 2x 2x, और टोटल टाइम t1 plus t2. तो t1 और t2 को x के टर्म्स में, x और v1 के टर्म्स में ला सकते हो क्या? हाँ Yes. तो बोलो कितना होएगा, t1 इक्वल्स टू t1 equals to not स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बोलो ना भाई, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. yes. So speed 2x upon v1 2x नहीं, इतना ही है ना, सिर्फ x को v1 से ट्रैवल कर रहा है ना. x divided by v1 ओके, और ये t2 इक्वल्स टू, x divided by v2. हाँ तो अब इसको पुट करो यहाँ पे और देखो क्या आता है. Okay sir. Sir, is my answer right now? Yes. Spera, you figured mistake. Yes, sir. ठीक है, तो उसका आंसर आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ठीक है, अर्नब शाह ऐसे मत करो, सही से करो. ठीक है, ये आएगा आंसर. Sir, हाँ in like this chapter we did some questions last time. उसमें what is the meaning of stopping distance? डिस्टेंस इन विच इट स्टॉप्स. तो अगर की वेलोसिटी से चल रहा है तो कहीं पे जाके स्टॉप होएगा ना, तो कितने डिस्टेंस के बाद स्टॉप होएगा. So is that the total distance or the distance covered after applying the brakes? आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स. दैट इज स्टॉप. अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया हुआ है, वो पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई. ऋषित गांगुली, यहाँ पे तुमको डाउट था ना, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. आ जाओ वीडियो पे यार, इतने बार पूछना होगा. Yes, sir. What did you say? Sorry. सनत कुमार, वेयर आर यू? कम. Yes, What sir. video review? Sir, my like whenever I try to switch it on, Zoom tells me that my network is weak. ठीक है, फाइन, चलो. तो ये v को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dx by dt is equals to 10 plus 2t plus 3t square, राइट, है ना. तो dx को क्या लिख सकते हैं फिर, 10 plus 2t plus 3t square dt, ये लिख सकते हैं ना. अब ये पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन ऑफ टाइम, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन ऑफ टाइम t equals to 1 seconds यार ये मेरे को अभी याद आया, ये एग्जैक्ट सवाल हमने पिछली क्लास में भी किया था, ये सारे सवाल हमने पिछली क्लास में किए. यू रिमेम्बर इट, बिकॉज ये मिस्टेक था, ओरिजिन ऑफ टाइम. यू रिमेम्बर? नहीं, किसी और के साथ किया था मैंने, आई डोंट नो. एनीवे, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 से टाइम t इक्वल्स टू 1 तक जाना है. ठीक है, if it is given that displacement is 20 meter at time t equals to 0, तो t equals to 0 पे x equals to कितना था, 20 था. तो अब हमको x से लेके x तक जाना है, तो 20 से लेके x तक. Get it? These are the limits of integration. आया तुमको समझ में ऋषित, ऐसे करना है इंटीग्रेशन. Okay, sir. तुमको dx की वैल्यू पता थी dt के टर्म्स में, तो अब हमको पूरे x की वैल्यू जाननी है, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे. Okay, so two things. It was upper limit minus lower limit, right? Yeah.
Okay, and one more thing. So if v is equal to 10 plus 2t plus whatever it is, shouldn't that be dv by dt and not dx by dt? अरे v की जगह dx by dt लिखा है ना, v अच्छा, की आपने जगह उसके equal to जगह dv by ओके, dt, ऑलराइट. ठीक है. तो v की जगह dx by dt लिखा है, फिर ये dt को इधर ले गए, उसके बाद आगे किया जो किया. करो इसको, निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू क्या है. ऋतु शंकर का आंसर आया, सनत कुमार का आंसर आया, और फिर ऋषित गांगुली फिर गायब हो गए. क्या सर, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना सर, सो आई एम जस्ट बेंडिंग एंड राइटिंग राइट, सो या उसमें उतना कैमरा ऑन नहीं कर सकता. क्यों? बेसिकली पोजीशन नहीं है लैपटॉप का वैसे करने पर, तो इसलिए नहीं करता. मैं बाद में ऑन कर दूंगा. बताओ आंसर बताओ. Sir, is the answer correct? पता नहीं, तुम बताओ. यू सेंड ना, ओके. एक्सेलेरेशन टाइम भी बता दो भाई सब लोग. ऋषित गांगुली क्या हुआ? मैं कर रहा हूँ. इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? आ गया सबका आंसर. तुम कहाँ पहुंचे बताओ. So I'm at s minus 20 is equal to 10t plus 2 square plus t cube. So after multiply, sorry, 2 स्क्वायर क्यों? it is so 2t into dt, हाँ. right? हाँ, तो 2t dt क्या बनेगा? 2t स्क्वायर बाई 2. Yeah, so that is why 2 gets cancelled. That is why t square. प्लस Yeah, t t क्यूब. cube. ओके. Yeah. ओके.
अच्छा, I heard 2 square. Okay, you saying t square. Okay. Kaveri, where's your answer? One. Square also gave now. Correct, Ritu Shankar. Good. Correct, Rishit Ganguly. Kaveri, what's your answer? Sir, I messed up. I'm doing it again. Okay. बाकी लोग 80 ग्राफ बताओ मुझे. ओके, कूल. आगे बढ़े फिर. कावेरी, क्या हुआ? तो द आंसर इज यहाँ पे 32 मीटर और यहाँ पे हो गया 2 + 60, which most of you got. Okay, चलो. When equation of displacement is given and speed needs to be found out. चलो. Displacement depends on time such that x equals to 2t minus 2. Then find out the average speed up to 4 seconds. तो तुमको ये देखना है कि x की वैल्यू 0 पे कितनी है. क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड टू टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा. तो एक सबसे पहले देखना है तुम्हें, मेरा ये इसकी वेलोसिटी कभी 0 होएगी क्या? Sorry, your voice was breaking, sir. Could you repeat your question? My voice is breaking. For others, can you hear me properly? Okay. ठीक है, रितु शंकर, you only come. Yes, sir. अगर इसका x equals to 2t minus 2 है, तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं हम? t equals to dx by dt. निकाल लो. t equals to क्या बोला, 4 सेकंड पे x निकाल लो, है ना. तो x0 x4 निकाल लो, तो तुमको पता चल जाएगा टोटल x कितना हुआ अपॉन टोटल टाइम, है ना. ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा Yes, नहीं, बिकॉज ये जो x निकल के आएगा ये डिस्प्लेसमेंट है. तो ऐसा करने से हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी बट एवरेज स्पीड नहीं मिलेगी. एवरेज स्पीड के लिए हमको टोटल डिस्टेंस जानना पड़ेगा, है ना. तो अभी टोटल डिस्टेंस कैसे पता करेंगे हम? अगर इसका तुम ग्राफ बनाते हो x और t का, तो कैसा बनेगा ग्राफ? ये t, ये x. तो dx by dt कितना होगा इसका? 2. मतलब कांस्टेंट ही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, घूमेगी नहीं. इसलिए इसके केस में ये ले सकते हैं x0 से x4. बट अगर हो सकता है कहीं वेलोसिटी ऐसे जा रही होती फिर वापस आ रही होती,
तो उस केस में टोटल डिस्टेंस तो ज्यादा होता, हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है ये x4 माइनस x0 करने से। तो अभी हम x4 माइनस x0 कर सकते हैं। तो x4 निकाल लो, कितना होगा, x0 कितना होगा -2, x4 कितना होगा 8 माइनस 2 6, है ना। तो x4 माइनस x0 कितना हुआ 8, 8/4 2 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, राइट। गॉट इट पीपल, क्लियर, ओके। चलो, ये सब तो बहुत सारे सवाल किए थे ना तुमने उस डीपीपी में। चलो करो, ये वाला सवाल करो। सर वो ग्राफ के क्वेश्चंस का लाइक वो ग्राफ वाला आपने जो पार्ट बोला ये इतना ही था या और नहीं, कुछ और आएगा? अभी हम करेंगे, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, इसके बाद ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले इसको खत्म करो फटाफट। So we got to know about our physics का portion. उसमें they are saying कि we only have motion, like units and measurements we are full, and motions they are saying only like the derivation of the formulas, like the first three equations of motion. तो डेरिवेशन They are पढ़ not. चले आना, बट मैं तो आगे पढ़ा रहा हूँ ना अब। आगे हाँ। Hold up. She told us the whole thing is coming except the graph. Yes, Ah. same. But it's not there, so I don't know what it means. नहीं, ग्राफ तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब एग्जाम के लिए नहीं भी पढ़ो पर अदरवाइज पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आगे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो। हो गया। इतना टाइम क्यों लगा? For distance, हाँ, what will be the limits for distance? डिस्टेंस। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल फ्रॉम 1 to 3 सेकंड्स।
1 से लेके 3 तक। सो सबसे पहले देखो इसको, वेलोसिटी यहाँ टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज होती जाएगी हर टाइम पे, है ना, राइट? हेलो हेलो हेलो, Yes. Yes, sir. अब इसका ग्राफ बना लो। टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना था? 4 या Yes, sir. ओके। फिर टाइम जब 1 था तो वेलोसिटी कितना था? 2. 2। टाइम जब और वेलोसिटी 0 कब था? जब टाइम 2 कितना था? seconds. 2 सेकेंड। When time was still. तो यहाँ पे ये हो गया, राइट? फिर 1 से लेके 3 सेकेंड तक, तो 3 सेकेंड पे क्या हुआ इसका साथ? जब 3 हुआ, टाइम 3 हुआ तो क्या हो गया? 3 2 6, तो -2 हो गया, है ना, लाइक दिस। तो इसका ग्राफ ऐसा चला 1 से लेके 3 सेकेंड तक, राइट? अभी क्या बोला? फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड्स। इसका मतलब वो कह रहा है ये 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस में हमने क्या बोला था? दिस प्लस दिस करना है। डिस्प्लेसमेंट में दिस माइनस दिस होता, 0 हो जाता, बट अभी तो दिस प्लस दिस करना है ना। तो बताओ कितना है ये कितना है टाइम? दिस वाज 0 1 2 3, तो ये हो गया, इतना हो गया 1 सेकेंड, और ये कितना हो गया? 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1 हो गया ये। तो दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, सो टोटल हुआ 2 मीटर्स का डिस्टेंस। आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes. है ना, क्लियर? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। So if we were doing this by integration, ओके, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट विद इंटीग्रेशन आल्सो। हाँ बोलो, कोई डाउट है? आर यू सेइंग समथिंग? हाँ, तो डिस्टेंस के लिए लिमिट्स क्या होते हैं? तो दैट्स व्हाई पहले तो यू नीड टू फिगर आउट कि ये वेलोसिटी 0 कब हुई। तो वेलोसिटी 0 कब होगी भाई? तो देखो ये ऐसे चल रहा है बॉडी, है ना, वेलोसिटी 0 कब होती? t = 0, सॉरी v = 0 व्हेन t = व्हाट? तो 2t = 4, t = 2, तो टाइम = 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। उससे पहले वेलोसिटी इज पॉजिटिव, उसके बाद वेलोसिटी इज नेगेटिव। इसका मतलब कोई बॉडी ऐसे जा रही थी, उसकी वेलोसिटी 0 है, फिर वो वापस आना शुरू हुई क्योंकि इसका नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी आ गई, है ना। अब हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? दिस प्लस दिस करेंगे ना, नहीं तो हमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा जो कि सिर्फ इतना सा रहेगा, हमको तो पूरा चाहिए। और ये सवाल हमने बार बार किया डीपीपी में, इफ यू रिमेंबर, राइट? सो हाउ डू वी हैंडल दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? एट t = 2 seconds वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, राइट? अब इसने बोला है कि भाई t से 1 से लेके 3 तक, तो अब हम क्या करेंगे? हमको निकालना है x ऑफ 1 से लेके 2 तक, फिर x 2 से लेके 3 तक, और दोनों को ऐड कर देना है। जो x 2 से लेके 3 आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, तो हमको साइन, इसके साइन को नेगेटिव से उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, राइट? गेटिंग इट कावेरी? Yes, sir. या सो दैट्स इट। दो, अब हम क्या करेंगे? हम दो इंटीग्रेशन लेंगे। सो dx by dt is equals to क्या दिया हुआ? 4 - 2t, राइट? सो dx equals to 4 dt minus 2t dt, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट हमको दो तरीकों में करना पड़ेगा। पहले तो 0 से ले, तो जो भी x हम ले रहे हैं 0 से लेके x1 तक, which is from 1 to 2 seconds, 1 to 2 seconds। फिर हम लेंगे 0 से लेके x2 तक, which is 2 से 3 seconds। फिर हम x1 minus x2 करेंगे क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, Got it. Sir, so in the exam, is it okay if we do it by either the graph method or yeah, absolutely, like absolutely, you can integration? do it with any method। yeah, this is physics। उसका आंसर नहीं दिया क्या? इधर दिया ना, ये देखो, लाइक दिस, मॉड्यूलस 1 से लेके 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2 से लेके 3, ओके।
कावेरी, Why modulus? क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है ना, डिस्टेंस कभी हाँ। नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसका मॉडुलस लेंगे. ओके, चलो ये वाला सवाल करेंगे. If velocity is given by the following equation, v equals to x square, then find out the relation between x and t. Assume x equals to 1 meter at t equals to 0. चलो भाई, x and t, तो dx by dt equals to x square है ना, निकाल. Sir, if the time is equal to 0, then there is no upper limit, right? Only 0 will only be the limit, right? नहीं नहीं, तुमको किसी भी टाइम पे जानना है ना, किसी भी t टाइम पे तुमको x जानना है. सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू t, और x का लिमिट क्या रहेगा, 1 से लेके x, क्योंकि जब t 0 था तो x इक्वल टू 1 था. Get it? Okay, got it. जल्दी बताओ.
क्या हो गया इतना टाइम? Where are you stuck? I'm not sure how to do this. Okay. So then ask na people. Smera, where are you? Sanat Kumar, where are you? Rishit Ganguly, where are you? Sure, I'm doing, but I'm stuck at one point, so I'm just thinking. Okay, But come. I'm doing. Tell me, how did you do? अभी तक कैसे approach किया बोलो, Rishit Ganguly? So I took v as dx by dt. Okay. So that will be is equal to x square. Then dx is equal to x square into dt. Okay. Then dx lower limit. I mean the limits are x and नहीं 1. भाई, जो वेरिएबल जिस तरह पे उसको वहीं लेके जाना पड़ेगा ना. So you will have to do 1 by x square dx equals to dt. तभी तो इंटीग्रेट करोगे. We can't do dx equal to integration of x square dt. हाँ? We can't do dx is equal to x square dt. नहीं, x square dt को कैसे इंटीग्रेट करोगे साथ में? दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना. Oh, हाँ. तो इसलिए नाउ यू विल इंटीग्रेट. अब t का लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे? t 0 है, 0 से लेके किसी भी टाइम t तक जाएगा ना. टाइम तो हमेशा 0 से चालू होता है, कहीं तक जाता है, तो 0 से t जाएगा. लेकिन जब 0 था t, तो x क्या था? x था 1, 1 से लेके कहीं x तक जाएगा. ओके, बस कर लो, इंटीग्रेट करो उसको. हाँ दीदी, करेक्ट. Wait, so do I leave it there or like नो, कुछ आगे? सिंप्लीफाइड. मतलब वो शिफ्ट करना है क्या, मतलब कुछ फिर? मुझे नहीं पता कि आगे क्या आया है आंसर, तो आई जस्ट शो यू लाइक दिस. वो okay. So can you once put the values of the limits and then show it, because I sometimes get confused. So just put the value x and 1 and show it once. ये आया, इंटीग्रेट करने के बाद ये आया -1 by x. ठीक है, अब ये हायर लिमिट पहले लिखना है, तो -1 by x लिखा, हायर लिमिट लिख दिया इधर पहले, माइनस, फिर -1 by लोअर लिमिट 1, तो क्या बचा? -1 by x माइनस माइनस प्लस 1. ये गेट इट? Yeah, okay, then I was doing it correct only. ओके. But 1 by x minus 1 is equal to 1 upon dx, 1 upon x square dx को क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा तुम्हारा? ये x to the power -2 है ना, +1 upon -2 +1 बनेगा ना, तो ये बनेगा x to the power -1 upon -1. It will be -1 upon x, right? yeah. जल्दी 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 जल्दी. हो गया? डन? आया समझ में? ठीक है. Yes. चलो फिर ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का. Go get something to eat, munch, wash your face and all. Then we will come back. Everybody has to be on video at least to start with, so that we start fresh. Okay, taking break now. So today's class is till Till 5. 5:15, 5:30 around. Okay, sir. 5:15, 5:30. Okay.